નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। આપ સૌ જાણો છો તે પ્રમાણે કોરોનાના આ મુશ્કેલી ભર્યા સમયની અંદર આપણે નોનસ્ટોપ એન્ટરટેનમેન્ટ પૂરું પાડ્યું છે ફૂટપ્રિન્ટ ટચ પ્રજાના એપી ગ્રુપના માધ્યમથી અને મિલેનિયમ ઇવેન્ટ્સના માધ્યમથી। આપ સૌ એ પણ જાણો છો કે લગભગ ગુજરાતના જે નામાંકિત સિંગર મિત્રો છે 75 કરતાં પણ વધારે અમારા સિંગર મિત્રોએ અમને આ એક અભિયાનમાં સાથ આપ્યો છે અને એ જ બધા શોની આજે 51 શોની સેલિબ્રેશનની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે આપણે સૌ અહીંયા ભેગા થયા છીએ। આપ સૌને હંમેશા અમને સાથ સહકાર અને પ્રેમ મળતો રહ્યો છે અને એના જ કારણે અમારા આ 51 જેટલા જે શો થયા એના 90,000 કરતાં પણ વ્યુઅર્સ અમને મળ્યા છે। ગુજરાત દેશભરમાં અને વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓનું પણ ગમતું આ પ્લેટફોર્મ છે ફૂટ મી ઇન ટચ પ્રજા અને મિલેનિયમ ઇવેન્ટ્સ। તો આજે જ્યારે 51માં શોની ઉજવણી નિમિત્તે ભેગા થયા છે ત્યારે અમે આપ સૌને આવકારીએ છીએ, આપ સૌનું ભાવભીનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ અને આપનો વધુ સમય નહીં લેતા કાર્યક્રમની શરૂઆત તરફ જઈએ છીએ અને આજના આ સેલિબ્રેશન શોનું પહેલું ગીત રજૂ કરવા માટે હું એન્કર અને સિંગર આપણા સૌના લાડકા એવા નીરજ ગજ્જરને હું આમંત્રિત કરું છું। थैंक यू, खूब खूब आभार आपका। और जितने भी दोस्त इस 51 शो के तक जो हमारे साथ थे और हमेशा रहेंगे, ऐसे सभी दोस्तों का, सभी सिंगर्स फ्रेंड्स का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हम सब की तरफ से। और आज दिन भी अच्छा है, माता रानी के नौरते अभी चालू है और आज 8वां दिन है, 8वां में तो हम सभी वी आर लकी कि आज ही के दिन ये तय हुआ है कि हम 51 शो के हम सेलिब्रेशन करें। तो आज की खूबसूरत शाम का पहला नगमा मैं गाना चाहता हूँ। थैंक यू प्रजा जी, थैंक यू नीरव भाई, सभी दोस्तों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों
अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं। हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। थैंक यू। बहुत अच्छे નીરજભાઈ આજની આ શરૂઆત સુંદર મજાના ગીતથી કરી છે. આપણી વચ્ચે અત્યારે જેઓ એક ખૂબ જ સારા મુકેશના અવાજના સિંગર છે એવા નીરવભાઈ હિંગુજી પણ આપણી સાથે છે. તો નીરવભાઈ હિંગુને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજનું ગીત કहीं दूर जब दिन ढल जाए રજૂ કરશે. कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए
बदन चुराए चुपके से आए। ખૂબ જ એટલે Thank you. બહુ જ સુંદર Thank you. ગાયું Thank you. નીરવભાઈ, ખૂબ ખૂબ એટલે બહુ જ સરસ ગાયું, એક Thank you. સરસ Thank you, માહોલ sir. આખું બનાવી દીધું છે. તો જે પ્રમાણે આપને આ પહેલા પણ કહ્યું એ પ્રમાણે આજે આપણે આ 51 શોનું સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આવા એક સુંદર અને અમારા સૌના મહેનતને એક વધારવા માટે, અમને આશીર્વાદ આપવા માટે અને અમને સૌને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તમારા અમારા દરેક ગુજરાતીના લાડકા એવા, જેવી રીતે આખા હિન્દુસ્તાનના અમિતાભ બચ્ચન બિગ બી કહેવાય છે, એવી રીતે આપણી સંગીતની, મ્યુઝિકની, ગાયકીની દુનિયાના બિગ બી એવા બિગ બી ઓફ ગુજરાત શ્રી બંકિમ પાઠકજી આજે અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તેમને નમ્ર વિનંતી સ્ટેજ ઉપર પધારવા માટે સાહેબને વિનંતી કરું છું. પ્લીઝ સર. તો આપ સમજી શકો છો કે અમારું હૃદય લાગણીથી કેટલું ભરાઈ ચૂક્યું હશે કે અમારી એક મહેનતને બિરદાવવા માટે આપણી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શિરમોર એવા શ્રી બંકિમ પાઠકજી અમારી વચ્ચે આજે ઉપસ્થિત છે. તો અમે સૌ દિલથી અને આપ સૌ પણ દિલથી સાહેબને આવકારીએ છીએ, સાહેબનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સરને હું આશીર્વચન માટે આપું છું. सबसे पहले मैं प्रजा को मुबारकबादी देता हूं, क्योंकि कलाकार बहुत सारे हीरे हैं, उसको तराशना और तराश कर स्टेज देना वो ऑर्गेनाइजर का काम होता है। और मैं प्रजा प्रकाश जी को मैं कई सालों से मैं उनको जानता हूं। मुझे लगता है कि जयशंकर सुंदरी हॉल, गांधीनगर और कई ऐसे ड्रामा के माध्यम से वो मेरे दोस्त रहे हैं। मैं उनको सबसे पहले मुबारकबादी देता हूं। अब उन्होंने जो मकाम पाया है, 51 से भी ज्यादा शो इस महामारी में बहुत सारे कलाकार उभरे हैं। फेसबुक के माध्यम से, छोटे छोटे स्टूडियो के माध्यम से बहुत सारे कलाकार गुजरात को मिले हैं। और इसी बात पर गुजरात भी धन्य कि एक तरफ कोरोना बने हैं लेकिन कलाकार तो मिलते हैं। तो मैं उनको सभी कलाकारों को मुबारकबादी देता हूं कि जो आए, क्योंकि संगीत चलना चाहिए। आज हम हैं, नहीं कल नहीं है, लेकिन संगीत चलना चाहिए। इसलिए नए नए कलाकार अगर आते रहेंगे तो संगीत चलता रहेगा दोस्तों। और मैं सभी कलाकारों को मुबारकबादी कहते हैं। 75 सिंगर्स आए और 90,000 से भी ज्यादा लाइक जिस चीज को मिली हैं, और 550 सॉन्ग्स इतने उन लोगों ने गाए हैं। तो मैं सभी कलाकारों को मुबारकबादी देता हूँ दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। તો સર આજે જ્યારે આપણી વચ્ચે છે તો આપણે એમને વિનંતી કરીએ કે માહોલને અનુરૂપ સરસ સર ગીત પણ પ્રસ્તુત કરે. સર પ્લીઝ સર. મહુવા સિવાય સરને ગવડાવાય નહીં. માઇક આપજો. મહુવા સિવાય ગવડાવાય નહીં. અને બે લાઈન બી મહુવા જ. બે લાઈન ગાશું તો મહુવા. મારું ફેવરેટ છે. ओके, महुआ मैं जरूर गाऊंगा, उसके 2 लाइन गाऊंगा सिर्फ। दोनों ने किया था प्यार, मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। ये महुआ का मैंने फरमाइश इनकी इसलिए पूरी की कि उनके हाथों मुझे ये સરપ્રાઈઝ. हाँ कई बात है।
कुछ सरप्राइज ऐसी रहती हैं कि रखते हुए भी शायद कहीं निकल जाती हैं। अब प्रजा है, कितनी भी दाढ़ी बना ले, मूछ बना ले, टोपी पहन ले, कुछ भी पहन ले, लेकिन पता चल जाता है कि ये हाँ प्रजा है। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. ખાસ તો સાહેબનો આભાર આપણે એટલા માટે પણ માનીએ છીએ કે એમણે આપણા બધા જ 75 સિંગરો જે અભિયાનમાં જોડાયા છે એમને પણ સાહેબે અભિનંદન પાઠવ્યા છે. તો આપણા અને આપના સૌ વતી હું બંકિમ પાઠકજીને વિનંતી કરીશ કે એક સરસ મજાનું ગીત સર પુકારતા. जी हाँ, रोमांटिक सॉन्ग, क्योंकि अभी मैं कोरोना में कोई सैड सॉन्ग इसीलिए नहीं जान कि बहुत सारे लोग सैड। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। सुनिए मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर में हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। कोई मिले जो रोक ले पुकार के, यूं ही जरा बढ़ा के हाथ प्यार से। इधर भी फेंक दे अदा की एक कली, गुजर चले हैं दिन यूं ही बाहर के। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं।
थैंक यू सर। और वी आर वेरी वेरी लकी। जो नाम मैंने बचपन में सुना था, बिग बी ऑफ गुजरात और श्री बंकिम पाठक जी, वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब, उन्हीं के साथ मैं आज बैठा हूँ, तो मैं बहुत लकी हूँ सर। और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी इस संगीत की गाड़ी को थोड़ा और आगे मैं बढ़ा सकूँ। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट खूबसूरत डुएट के लिए इस मंच पे मैं हमारे साथ जो आज जुड़ी हैं, हमारे इस फुटमिंटन प्रजा परिवार और मिलेनियम इवेंट्स के परिवार में, नीलम गढ़वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप आए और एक खूबसूरत सा डुएट फिर से बंकिम सर के साथ आप निभाएं। Sorry, એમને કયું માઇક આપો? हेलो, बंकिम जी हमारे जो तारीफ की वो भी कम लग रही है मुझे उनके लिए, क्योंकि मैंने भी इतना नाम सुना हुआ है, जबकि मैं काफ़ी साल मेरे दुबई में गुजरे, बट वहाँ पे इनका भी एक नाम का एक वो कहते हैं ना जुनून सबके सर पे सवार रहता है। तो आज मेरे लिए एक कहूँ तो माता रानी के आशीर्वाद ही है, जो इंस्टेंट ऐसा मौका मिलना वो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और सर, गाने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप सीनियर हैं, बहुत आपका एक्सपीरियंस है जो हमें भी हमेशा काम आता है, कुछ ना कुछ सीखते हैं हम आपसे। मैं भी आज ये आपसे, नीलम जी, आपका नाम भी मैंने बहुत सुना है और मैंने YouTube पे और ये सब आपके सुने भी हैं। यू आर ए वंडरफुल सिंगर। और बात रही सीखने की, तो कोई पूर्व कलाकार पूरा नहीं होता। आज मैं भी सीख रहा हूँ। ये आपका बड़प्पन है, मैं सीख रहा हूँ। ये आपका बड़प्पन, और यही आपकी सबसे बड़ी बात है जो हर कलाकार को सीखनी चाहिए, कि इतना एक्सपीरियंस, इतना काम करने के बाद भी अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि आज भी मैं सीख रहा हूँ, तो शायद ये सबसे बड़ी बात है जो आज मैं सीखना चाहती हूँ आपसे। तो आपकी इजाजत के साथ मैं शुरू करती हम हूँ। गाते हैं नौशाद साहब की एक धुन, रफी साहब और लता जी का गाया हुआ, शकील बदायूनी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, म्यूजिकल हिट फिल्म थी। और मैं हमेशा ये गाना स्टेज पर गाता रहता था। आज आपने मुझे जब पता कहा नहीं है, था कि मैं आज ये गाना आपके साथ चलो, very nice song. माय फेवरेट। याद में तेरी जाग जाग के रात भर करवटें बदलते हैं, भर
चलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटे बदलते हैं। एकदम एक्सलेंट રહ્યું આખું. પ્લીઝ આપ નિહાલજી રહેજો, નીલમજી રહેજો. આજે આપણી વચ્ચે નીલમજી પણ છે, બંકિમ પાઠક સર તો છે જ, અને સાથે આપણા લાડકા એવા નીરજ ગજ્જર પણ છે. તો એક સરસ મજાનું એક ટ્રાયો સોંગ પણ આપણે લઈ લઈશું. મારું ફેવરિટ સોંગ છે, એટલે આ મારી ખાસ ફરમાઈશ છે, ક્યા મોસમ હૈ. हाँ तो सुनने वालों के दिलों में यही एक जगह है. तो આ પણ એટલું જ સરસ ગીત છે કે દિલને ફિર યાદ કિયા. તો એના માટે હું નીરવ હિંગુજીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મુકેશના અવાજમાં પણ આમાં સાથ આપે. Thank you for changing the song. नहीं सर, This is the it was in the list पर. And it doesn't matter. List आगे पीछे हो जाता सर है. हम जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ लाइन वहाँ से शुरू होती है. ओके, लाइन वहाँ से शुरू होती है. नहीं प्लीज તમારે શેર કરવાનું. What you reach? Oh, sorry.
क्योंकि 50 साल यूं गुजरे, लेकिन 50 सालों में हमेशा लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ ही गाया है, चाहे वो खांडेकर ब्रदर्स हो या संदीप हो। लेकिन आज मैं सीख रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मैं ट्रैक पे गाना सीख रहा हूँ, और इसलिए हर दिन एक ऐसा होता है जहाँ कलाकार को सीखना चाहिए। नई ये टेक्निक है, नई नई ट्रैक पर है, तो मैंने सच्ची कहा था कि भाई मैं कुछ सीख रहा हूँ आज। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर जी आपके साथ। थैंक यू सो मैं मच। एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सर के साथ मेरे बड़े भाई जो एक्सपायर हो चुके 2 साल पहले, वो आज से 25 साल पहले यही गाना सर जब भी गांधीनगर आते थे तो उनके साथ वो टाउन हॉल में यही गाना परफॉर्म करते थे। वो भी मुकेश जी की आवाज़ में बहुत अच्छा गाते थे। और आज मुझे वो दिन 25 साल पहले के दिन याद आ गए जब मैं भी छोटा था, बहुत छोटा था, और मेरे बड़े भाई जो थे वो उनके साथ गाया करते थे, बहुत गाया इनके साथ। तो आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं सर के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, उनके साथ गा रहा हूँ। थैंक यू। ये बहुत मुझे प्राउड फील हो रहा है सर। मुझे थैंक यू वेरी मच सर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नए नए कलाकार, उभरते हुए कलाकारों के साथ काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि कलाकार आए, उनका एक्सपीरियंस बढ़े और कलाकार ये संगीत को आगे चलाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आज के इस शो को हम आगे ले जा रहे हैं। तो दोस्ताना वाले नहीं ना, दोस्ताना થેન્ક યુ નીલમજી। તો આપણી સાથે હવે દોસ્તીનું એક સરસ મજાનું ગીત લઈને શ્રી બંકિમ પાઠકજી અને નીરજ ગજ્જર આવી રહ્યા છે। પ્લીઝ। नीरज और नीरव दोनों एक ऐसे मिलते जुलते नाम हैं। एक मुकेश जी के साथ गाने गाते हैं, एक रफी साहब के गाने गाते हैं। तो पहला गाना उन्होंने रफी साहब का गाया, अभी किशोर दा के साथ मेरा साथ दे रहे हैं। ये भी गाना बहुत ही मशहूर है। और ये बात कहूँगा प्रजा कि किशोर दा और रफी साहब में बहुत सारी लोगों की गलत फहमी थी कि सिंगर उनकी अनबन है, ऐसा है, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ, क्योंकि किशोर दा के साथ मैंने यूनाइटेड किंगडम का पूरा टूर किया हुआ है। जी हाँ, किशोर दा के साथ। और किशोर दा ने उस वक्त बताया था कि रफी साहब जब इंतकाल हो गया उनका, तो उसी दिन से मेरे प्रोग्राम की शुरुआत रफी साहब के गीत गानों से होती थी। आज तुम मेरे साथ हो और तुम रफी साहब का गाना गाओगे और प्रोग्राम यूके का मैंने 7 शोज आयोजन। और एक बार ऐसा भी आया कि जब किशोर दा ने इमरजेंसी के वक्त उनको फोर्स किया गया हुआ था कि आपको गाना पड़ेगा फ्री ऑफ चार्ज कटोकटी में आपको, और किशोर दा तो ऐसे थे कि भाई देखो मैं गाऊंगा लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए, हमारे ये तो रोटी रोजी का है हमारी। तो वहां से उनको बैन कर दिया था। तो खुद रफी साहब गए दिल्ली और कहा कि देखिए ये ऐसा कलाकार को ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनके रेडियो पर फिर उनके गाने शुरू करवाए रफी साहब ने। तो दोस्ती उनकी ऐसी थी। तो आज मैं भी तुम्हारे साथ दोस्त बनकर गाऊंगा। तो सर ने ये बात जो कही वो हर एक कलाकार को अपने जहन में रखनी चाहिए कि कलाकार कभी दूसरे कलाकार का हरीफ नहीं होता है, कभी नहीं होता है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी किशोर दा और रफी साहब की, तो वैसी मिसाल अभी अपनी इंडस्ट्रीज में भी है, काफी दोस्त लोग हैं। कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है, सबको अच्छा लेके अपनी अच्छाई को लेके आगे बढ़ना है। वो सर से हम सीख रहे हैं और वही बात को आगे बढ़ाते हुए आज का ये गाना दोस्ताना किशोर दा और रफी साहब की दोस्ती को अर्पण करते हुए पेश करेंगे रफी साहब और नीरज जी। प्लीज मुझे संभाल लेना। अभी तो सर आपका आशीर्वाद मैं लूंगा, आप मुझे संभालिएगा प्लीज।
बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। Thank you. ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्त को, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्त को। हमें दोस्ती की कसम दोस्त को, बता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। Thank you. नीरज बहुत ही खूबसूरत गाया है दोस्त, और गॉड ब्लेस यू। तुम कहते कि मैं छोटा था, अब ऐसा हो गया है कि अभी शादी के लायक हो गया है। लेकिन मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ साथ हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और बहुत ही कलाकार हमेशा, जैसे प्रजा जी ने कहा कि कलाकार के दिल में एक ऐसा इमोशन होना चाहिए दूसरे के प्रति। कभी कंपटीशन का वो रखना ही नहीं चाहिए कि मैं इससे, कभी अगर ऐसा दिल में अगर आता भी है कि मैं तुमसे छा जाऊं,
तो उसी वक्त ऊपर वाला काट देगा, उसी वक्त काट देगा। तो मैं सिर्फ आपको यही कहता हूं कि ये स्टेज हैं, उनका इज्जत किया करो बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। तो जैसे बंकिम सर ने अभी बताया, तो यही हमें सीखना है। जो इतनों सालों से हमारे सबके दिलों में बंकिम पाठक जी बसे हैं, वैसे और कई सालों तक अपने गीतों के साथ हमारे दिल में बसे रहेंगे। लेकिन ये सब जो टिकने वाली बात है वो ये है कि आपके खुद के अंदर एक जुनून होना चाहिए, प्यार होना चाहिए दूसरे कलाकारों के लिए, अपनी कला के लिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो यही बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे आज हमारा 51वां शो का आज का ये जो सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन के लिए एक बहुत बड़ी एक सरप्राइज हमारे पूरी टीम के लिए है। और वो क्या सरप्राइज है वो मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के, वर्ल्ड रिकॉर्ड के, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मिस्टर पावन सोलंकी जी। प्लीज पावन सोलंकी जी आइए प्लीज। આજે પ્રજા અને મિલેનિયમ ઇવેન્ટ્સ ઘણા વખતથી એ લોકોનું હું ફોલો કરી રહ્યો હતો અને જેટલા બી શો છે એ બધા લગભગ મેં જોયેલા છે। સાથે સાથે હમણાં છેલ્લા ઘણા વખતથી કે લગભગ છેલ્લા વર્ષમાં મ્યુઝિક ઉપર મેં ઘણા રેકોર્ડ કર્યા છે, જેમાં સાહેબ બંકિમભાઈનો જે છેલ્લો રેકોર્ડ અમે કર્યો એ પછી કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યા છે। હમણાં ઓનલાઈનમાં તો અમે હમણાં 101 જે કર્યો 24 કલાકના કરી ચૂક્યા છે। પ્લસ સાહેબ કદાચ તમે પ્રવીણ ભીવગડે અને સુનિલ વાઘમારેને ઓળખો છો, એને આખો રેકોર્ડ કરાવવા વાળો હું છું। એટલે મ્યુઝિકની અંદર ઘણા બધા રેકોર્ડ કર્યા છે। પ્લસ અમદાવાદની અંદરથી લગભગ 8 રેકોર્ડ અમે કર્યા હતા, જેની અંદર ટ્રિપલેટ પ્લસ ડ્યુએટના રેકોર્ડ છે, પ્લસ 50 વર્ષની ઉપરના લોકોનો આખો અમે રેકોર્ડ કર્યો હતો ત્યાં ગાંધીનગર। તો સિનિયર સિટીઝનમાં બી ઘણા બધા એટલા સારા કલાકારો છે। તો પર્ટિક્યુલર આજે આ જે રેકોર્ડની આપણે વાત કરીએ, તો આપણે પહેલું જે સર્ટિફિકેટ છે એ જે મેક્સિમમ લાઈવ કરાઓકે સિંગિંગ પ્રોગ્રામ બાય અ ગ્રુપ, તો ટુ રિડ્યુસ સ્ટ્રેસ ઇન પેન્ડેમિક COVID-19 lockdown period, put me in touch Praja and Millennium Events organize online karaoke singing program under the mentorship of Praja Prakash Jadawala on Facebook for 51 days non-stop, wherein 75 singers simultaneously perform 500 plus songs on karaoke track, which were watched by 90,000 viewers on social media. And it's a new record. And we invite all these people, Praja team. હું મારી ટીમના અને મારા સહયોગી એવા નીરજ ગજ્જર, નીરવ હિંગુ, મીનુ શર્માજીને આમંત્રિત કરીશ કે તેઓ આ એવોર્ડ લેવામાં અમારી સાથે સહભાગી બને। અને આજના અમારા શોમાં અમારી સાથે પણ જોડાયેલા નીલમ ગઢવીજીને પણ વિનંતી, તેઓ પણ આ એવોર્ડમાં અમારી સાથે જોડાય। અને મ્યુઝિકનું સર્ટિફિકેટ હોય અને બંકિમભાઈના આશીર્વાદ મળે એમના, એ બહુ મોટી વાત છે। આજે એમનો ટાઈમ કાઢીને આવ્યા છે અને આ લોકડાઉનમાં બી કદાચ કોરોનામાં હમણાં એ હતા પણ આજે આવ્યા છે, એ બી અમને ખુશી થાય છે। થેન્ક યુ। कोरोना को बहुत दूर हटा दिया मैंने, कोरोना मुझसे हार गया है। क्योंकि मैं सभी सुनने वालों को ये कहता हूं कि जरूरी तो है प्रिकॉशन जरूरी है और इतना भी जरूरी है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उससे उदासी आ जाती है और उदासी कोरोना ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उदास नहीं है, हम प्रिकॉशन
पोषण जरूर रखेंगे। अभी अभी भी मैं जब ये बातें कर रहा हूँ, मुझ पर अमेरिका से नजर होगी कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, और तो उनकी वहां से भी होगी। लेकिन दुनिया है, चलना तो है ही, उसके साथ लड़ना है। तो मैं सभी को स्टे होम ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि घर में रहेंगे तो फिर खाएंगे क्या। लेकिन बाहर जाते हैं तो लोगों से इस तरह से मिले कि कोरोना को हम हरा सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये आपकी भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप ही ने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है कि 50 साल में जब पूरा किया और 5000 शोज क्रॉस किया, तो रिवर फ्रंट पर जो शो मेरा हुआ उसमें सर ने मुझे सराहा है और अवॉर्ड दिया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। સરના હાથે બીજા પાવ આપણે બધા ખાલી જોડે લઈશું. નીરુભાઈ આવી જાઓ. ભાઈ એક શાંતિથી સરસ મજાનો ફોટો ગ્રીન વાળા પેલું પ્રજા છે ને એમાં પહેલા લુક આપજો. ભાઈ આ તકે ફેસબુકના માધ્યમથી અમે અમારા બધા જ વ્યુઅર્સનો અહીંયા અમે દિલથી આભાર માનીએ છીએ. બધા જ સિંગર મિત્રો જે ખૂબ સન્માનીય છે, એમણે અમને સહયોગ આપ્યો છે, આ એવોર્ડ અમે એમની સાથે શેર કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ સર, થેન્ક યુ. આ મેડલ હું આપ સૌ વતી પહેરી રહ્યો છું અને બિગ બી ઓફ ગુજરાતના હાથે પહેરી રહ્યો છું. તો વિચાર કરો મને કેટલો આનંદ અને ગૌરવ થતો હશે આપ સૌ વતી. થેન્ક યુ. હવે આજની બીજી સરપ્રાઈઝ, બીજું જે આજે રેકોર્ડ થઈ રહ્યો છે એ છે નીરજભાઈ ગજ્જર, જેમણે મેક્સિમમ ટાઈમ એનાઉન્સિંગ કર્યું છે લાઈવમાં. એનું ડેક્લેરેશન કરવા જઈ રહ્યો છું. maximum time to announcing on online live singing program. Neeraj Gajjar, born on 26 July 1979, a singer and announcer of Ahmedabad, Gujarat, perform announcing on a daily online karaoke singing program on Facebook for 90 hours in 54 days. Non-stop organized and supported by Put Me in Praja and Millennium event with the 75 singers simultaneously and set a new record. Congratulations, Neeraj bhai. Congratulations ji. Very good. તમારે રહેવાનું તો લેવાનું તમારે, અમારે તો જોડે રહેવાનું છે. વેરી કોંગ્રેટ. થોડું નીચું રાખો નીરજ. તમારા હાથે પહેરાવડાવો. બરોબર છે. તમારા હાથે પહેરાવડાવો. यस यस इधर देखना, इधर देखो देखो, रुको रुको. Congratulations. थैंक यू सर. સારું સિંગિંગ તમારે. થેન્ક યુ. ओह श्योर. હા ચોક્કસ. અરે સર આપણે અહીંયા રહેવાનું જ છે. જન્મન ગામ. તો પાવન સોલંકી જે આજે આપણી વચ્ચે છે, ત્યારે એ પહેલા તમે મીનુજી પ્લીઝ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. ફરી એકવાર હું કહી દઈશ કે આ જે કંઈ અમે માન સન્માન મેળવી રહ્યા છીએ એ આપ સૌ વતી જ મેળવી રહ્યા છીએ. અને આજે આપણા સૌના પરમ મિત્ર એવા પાવન સોલંકીજી આપણી સાથે છે, તો તેમને વિનંતી કે તેઓ એક ગીત સરસ મજાનું રજૂ કરશે. પ્લીઝ એમને પેલું માઇક આપજો. તમારે અહીંયા દેવાનું છે. કારણ કે બચ્ચાની લાઈન તમારી છે. એ તો ઓપોર્ચ્યુનિટી કઈ છે? એ છે હમણાં આવશે. क्या मौसम में મને हेलो હા તો હું કિશોરદા. ના डबल क्लिक कर देना. किशोर बनने कर दो माइक डबल क्लिक कर. क्या
हेलो हेलो
एक हो जाए हम, एक हो जाए। प्रजा जी को मैं बुलाना चाहूंगा एक बार, वो कुछ कहना चाहते हैं। ખાસ તો આજે એક સરસ માહોલ છે અને સરસ વાતાવરણ બન્યું છે અને આ 5100ના સેલિબ્રેશનમાં આજે બધા જ દિગ્ગજ મિત્રો આપણી વચ્ચે જ્યારે ઉપસ્થિત છે ત્યારે આપણી પ્રણાલિકા પ્રમાણે હું મીનુ શર્માજીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી બંકિમ પાઠકજી, નીલમજી અને પાવન સોલંકીને બુકે આપે. શ્રી બંકિમ પાઠકજીને પ્લીઝ બુકેથી આપણે એમનું સન્માન કરીશું, સ્વાગત કરીશું. મિસિસ હિંગુને વિનંતી કે તેઓ શ્રી નીલમ ગઢવીને બુકે આપશે. અને યોગેનભાઈને વિનંતી કે તેઓ પાવન સોલંકીને બુકે આપીને એમનું સ્વાગત કરે. પાવનભાઈ સોલંકી અને ભાવેશભાઈને પણ વિનંતી કે તેઓ બંકિમભાઈને બુકેથી સ્વાગત કરશે. સાહેબને આપણે ફૂલોથી આજે આમ ભરી લેવાના છે. આપણી લાગણી ફૂલો જેવી છે, મહેકતી રહે છે. તો બીજી એક વાત પણ આપની સાથે શેર કરવી છે કે અમે અમારા ફૂટપ્રિન્ટ ટચ પ્રજા અને મિલનના માધ્યમથી જેટલા અમે શો કર્યા છે, જેટલા સિંગર મિત્રો અમારી સાથે એક અભિયાનમાં જોડાયા છે, એ તમામને અમે કોરોના વોરિયર ગણ્યા છે. જેવી રીતે ડૉક્ટર અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ છે ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સ હોય છે, એવી રીતે કલાકાર મિત્રો, સિંગર મિત્રો પણ કોરોના વોરિયર જ છે. કારણ કે અમને હકારાત્મક વાતાવરણ પૂરું પાડ્યું છે, લોકોની વચ્ચે એક સારું અને પ્રફુલ્લિત વાતાવરણ બનાવવામાં એમણે મહેનત કરી છે. તો અમે દરેક સિંગર મિત્રોનું અમે કોરોના વોરિયર તરીકે સન્માન કર્યું છે. તો આજે પણ અમે એક તક ઝડપીશું અને આપણા સૌના કોરોના વોરિયરના જે સેનાપતિ એવા શ્રી બંકિમ પાઠકજીને પણ આજે અમે સન્માન કરીશું. એમાં નીરવ હિંગુજી અને નીરજ ગજ્જર અમારી સાથે જોડાશે અને પાવન સોલંકીજી પણ જોડાશે. પ્લીઝ આપણે બધા જ જોડાઈશું, હું નામ નહીં બોલું, આપણે બધા સાથે જ છીએ. સન્માનમાં આપણે સાથે જોઈએ. નીલમબેન બરાબર છે ને? તો અમારા માટે એક ખૂબ જ ગૌરવની ઘટના છે કે અમારા કોરોના વોરિયરના સેનાપતિજીનું અમે એક સન્માન કરી રહ્યા છીએ. સર, આ લાગણી છે અમારી. थैंक यू सर. हाँ, नीरज गज्जर. थैंक यू. और सर ने जिस तरह बोला कि हम सबको जो मार्गदर्शन दिया है कि संगीत और कलाकार एक ऐसा रिश्ता है जैसा इंसान के शरीर का सांसों से है, और इसमें जितनी ऑनेस्टी होती है आपका प्रगति उतनी होती है. और उसके बाद आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम तक पहुंचते हुए काफ़ी सारे दोस्तों ने हम सभी को साथ दिया है, सहकार दिया है. काफ़ी सारे दोस्त हैं, सभी के मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पे स्टूडियो में मेरे इनविटेशन पे, हम सबके इनविटेशन पे नीलेश अमीन जी आए हैं मेरे साथ. वॉइस ऑफ किशोर, आपका स्वागत करता हूँ नीलेश भाई. और कुमार सानू जी की आवाज़ में बखूबी गाते हुए प्रवीण प्रजापति जी, आपका स्वागत. और इसके बाद फिर से प्रजा जी के दिल में कुछ आया है तो फिर से कुछ बोलना चाहते हैं. मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा कि नीलेश अमीन जी आइए और प्रवीण जी आइए और सर का आप स्वागत कीजिए फूलों से प्लीज. हमारी इस સર, આપને આ બધા બહુ જ આશિક છે, ફેન છે. बुलाना चाहूंगा हैपनिंग क्लब के ऑनर. और इस खूबसूरत वेन्यू में हम जहाँ पर बैठे, योगेन भाई मारेक, आपको भी मैं न्योता देता हूँ कि सर का आप स्वागत करें फूलों से. और ये जीत हमारे अकेले की नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, काफ़ी सारे दोस्त जुड़े हैं. सभी के प्यार और दोस्ती से, उनके साथ और सरकार से हम यहाँ तक पहुँचे. और अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता, एक और एक 11 होते हैं. एक और एक दूसरे को साथ देते हुए सफलता हमेशा मिलती है. इसका ही नज़ारा हम सब देख रहे हैं.
और सर के पास आज जिंदगी में पहली बार शेयर करने का मौका मिला, स्टेज शेयर किया है सर मैंने आपके साथ, और आपका आशीर्वाद आज मुझे मिला है। तो एक दूसरी सफर मेरी आज से शुरू होती है संगीत की। तो ये दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, और ये दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि माता रानी का ये नौरते चलते हैं और 8म है आज। तो माता जी का आशीर्वाद मिला है और आपका भी आशीर्वाद मिला है। तो हमेशा जिंदगी भर इस दिन को मैं कभी भूलूंगा नहीं, शाम को भूलूंगा नहीं। और पवन जी के दिल में एक बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म गौतम गोविंद से वो गुनगुनाना चाहते हैं, तो मैं माइक उनको देता हूँ। हेलो। एक रुत आए एक रुत जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। एक रुत आए एक रुत जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। कौन जतन करूं कौन पाए, एक रुत आए एक रुत जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। तब तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे आंखें बरस गई। तब तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे आंखें बरस गई। बरस बरस दुख बढ़ता जाए, एक रुत आए एक रुत जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। माँ की ममता नीर बहाए, एक रुत आए
नफरत करना सीख लिया, सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। प्यार न सीखा नफरत करना सीख लिया, सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। इनको जीना कौन सिखाए, एक रुत आए एक रुत जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब, एक रुत आए एक रुत जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब, बदले नसीब, मौसम बदले ना बदले नसीब। थैंक यू पवन भाई, और आपकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत नजराना हमको आज मिला है। हाँ, और अगला जो डुएट है, फिर से मैं बंकिम सर को बोलूँगा एक खूबसूरत सा डुएट हमको सुनाइए, और ये हम सभी के लिए सरप्राइज है। और इस डुएट को निभाने के लिए फिर से वंस अगेन नीलम गढ़वी जी को मैं बुलाना चाहूँगा मंच पे। सरप्राइज वो है, सारी जिंदगी मैंने रफी साहब की आवाज में गाने की कोशिश की है। रफी साहब को गाना बड़ा मुश्किल होता है, सिर्फ कोशिश की है रफी साहब के। लेकिन जब कॉलेज के दिनों में था, कॉलेज अब कि उस वक्त ऐसा होता है कि कौन सी नई फिल्म आई है, कौन सा नया गाना चलता है, उस वक्त रफी साहब पर मैंने कंसंट्रेट नहीं किया था, क्योंकि कॉलेज के दिनों में तो न तो मेरे पास कोई टेप रिकॉर्डर था, कुछ नहीं था। मैं रेडियो पर सिलोन पर किसी के घर कान देकर सुनता था। ये बुधवार की शाम को जो आता था प्रोग्राम, वो भी किसी के घर जाके देखता था। लेकिन उस वक्त मैंने टैलेंट इवनिंग में जो गाना गाया था वो रफी साहब का नहीं था, किशोर दा का था। और ये सरप्राइज मैं देना चाहता हूँ। और इसके बाद फिर जब एनुअल फंक्शन हुआ, उस वक्त मैंने रफी साहब का गाना गाया, तो उस वक्त मेरे दोस्त ने कहा कि किशोर दा की आवाज में गाया आपने, वो अच्छा है, गुड है, लेकिन आप कंसंट्रेट करो रफी साहब की आवाज पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस वक्त से मैंने रफी साहब को, लेकिन किशोर दा की भी बहुत इज्जत, सिर्फ किशोर दा नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के सभी गायकों की मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि मुकेश जी ने भी क्या कमाल गाया है, किशोर दा ने गाया है, ये हेमंत कुमार जी ने गाया है, कुमार सानू जी ने गाया है, महेंद्र कपूर जी ने, यशुदास जी ने, बाला सुब्रमण्यम जी ने, और अभी तो मैं कहूँगा कि सोनू निगम भी बहुत ही अच्छा है, सोनू जी भी बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। तो मैं ये सरप्राइज बोल दी है, तो मैं आप मेरे साथ गाएंगी? कैसे भी करके मैं गाने की कोशिश करता हूँ। ये दिस इज गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल,
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो जुड़ के हैं तो तुम हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी ओ मेरे हमराही मेरी बात में चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, इसमें संभलना कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। दूरियां अब कैसी हर शाम जा रही है, हमको डलते डलते समझा रही है। दूरियां किसी हर शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझ आ रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। થેન્ક યુ થેન્ક યુ। હું અહીંયા એક નાનકડી વાત જે બંકિમ પાઠકજીના ચાહક છે એમને સાથે એક નાનકડી વાત હું શેર કરીશ અથવા તો એક અપીલ કરીશ કે જ્યારે આ લોકડાઉન પૂરું થાય પછી ટાઉન હોલ અથવા ટાગોર હોલમાં એક આપણે કિશોર કુમારનો શો રાખીશું બંકિમ પાઠકજીના અવાજમાં। થેન્ક યુ। दोस्तों मैं किशोर दा को बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मैं सिर्फ रफ़ी साहब और सिर्फ रफ़ी साहब मेरे साथ। हाँ, एक आध गाना किशोर दा का मैं जरूर डालूंगा, लेकिन किशोर दा के बहुत सारे सिंगर्स हैं अहमदाबाद में,
उभरते हुए पहुंचे हुए बहुत से मंजिल पे पहुंचे हुए बहुत सारे कलाकार हैं। मैं जरूर करूंगा दोस्तों, और प्रजा को मैं कैसे नाराज कर सकता हूं। प्रजा का वोट तो चाहिए। थैंक यू सर। और अगले સર આપણી વચ્ચેથી હવે આ સ્ટેજ ઉપરથી નીકળી રહ્યા છે, તો આપ સૌ વતી સરને અમે ફરી એકવાર થેન્ક યુ કહીએ છીએ, અને આપ ઘરે બેસીને પણ સર માટે ક્લેપિંગ કરજો પ્લીઝ. થેન્ક યુ. તો આપ જે પ્રમાણે કાર્યક્રમ આખો માણી રહ્યા છો, ખૂબ જ બહુ જ મજેદાર આજનો આ કાર્યક્રમ, એક પછી એક ખૂબ સરપ્રાઈઝ પણ આપણને મળતી રહી છે. એક તો સરસ મજાનું પુટમી ટચ પ્રજા, મિલેનિયમ ઇવેન્ટ્સ અને નીરજ ગજર અલગ અલગ એક માઇલસ્ટોન આજે એચીવ કર્યું છે, એક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તો પવન સોલંકી મને પણ અહીંયા આ તકે થેન્ક્સ કહીએ છીએ. આપણા સૌના લીજન્ડ એવા શ્રી બંકિમ પાઠકજી, બિગ બી ઓફ ગુજરાત પણ આજે જ્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આજે રહ્યા અને કાર્યક્રમને દીપાવ્યો. 4 ચાંદ 10 ચાંદ 20 ચાંદ તો એમણે સરળ લગાવી દીધા છે. અને નીલમ ગઢવીજી કે જેઓ ઇન વેરી સ્પેશિયલ કેસ એમના પ્રી શિડ્યુલની વચ્ચે પણ આજે અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ કાર્યક્રમને ખૂબ જ રંગીન બનાવ્યો છે. અમે થેન્ક્સ નહીં કહીએ કારણ કે કલાકાર મિત્રો એકબીજાને થેન્ક્સ નથી કહેતા, એટલે ખૂબ સરસ હજી કાર્યક્રમ આગળ વધવા જઈ રહ્યો છે. હું નીલમજીને કહીશ, તેઓ 2 શબ્દ કહેશે. મારે જે કહેવું હતું એ તો મેં જ્યારે બંકિમજી સર જોડે હું સ્ટેજ ઉપર શેર કરતી હતી ત્યારે જ કહી દીધું કે માતાજીના આશીર્વાદ વગર આવો મોકો ઇન્સ્ટન્ટ ના મળે. આના માટે બહુ પ્લાનિંગ જોઈએ, આમની સાથે ગાવા માટેની તૈયારી પણ જોઈએ. અને ફેસબુક લાઈવ જ્યારે તમે જઈ રહ્યા હો ત્યારે ડેફિનેટલી તમારે પોતાની જાતને પ્રિપેર કરવી પડે, કારણ કે આપણને લાગે છે પણ આ માધ્યમથી ઘણા લોકો સુધી તમે જે રીતના કીધું એ રીતના પહોંચી શકાય છે. અને ડેફિનેટલી એમણે જેમ કીધું કે ઘણા નવા કલાકારો આ લોકડાઉનમાં, એમાંની હું એક છું. યસ, કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ એના ઉપરથી લોકડાઉનના જે આપણે મૂડને ફ્રેશ કરવા માટે લોકો સુધી પહોંચતા હતા, એમ હું પણ અમદાવાદના ઘણા લોકો કલાકારો સુધી હું પહોંચી છું. એના માટે થેન્ક યુ સો મચ, તમે કીધું એ રીતના. અને યસ, આજે મારા માટે એક લકી ડે હતો. બંકિમજી, હોપ કે મેં તમને તમારા સાથે એઝ અ કો સિંગર મેં થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ. એટલે બસ હું એટલું જ કહીશ કે આવું જ નેક્સ્ટ ઇન ફ્યુચર જ્યારે શો ચાલુ થશે ત્યારે હું વેઇટ કરીશ એના માટે. થેન્ક યુ. I'll take a leave. Thank you very much, everybody. Thank you so much. Good luck to you, sir. Good luck to you. और बहुत ही खूबसूरत अगले डुएट के लिए फिर से मैं नीलम जी को बोलूँगा कि, और नीरव जी को बोलूँगा कि एक प्यार का नगमा है वो सुनाया जाए. Chalo. All the best, everybody. Thank you, sir. મારું મીનુ લઈ દે સર. Oh, yeah.
प्यार का नगमा है। उधार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, चादर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू वेरी मच। मैं नीरज भाई को सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये
मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। थैंक यू पवन जी। और अगला डुएट के लिए मैं एक बार हमेशा जो मेरा साथ देती हैं मीनू शर्मा जी को मैं बुलाना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी की तरह है ना रे भाई आज तो दिल बहुत खुशी से भर गया है। ओहो चुपके जा रहे वही तो है ना। छुप
जाना तेरे होठों पे रात ये बहाना था गोरी तुझको तो आज नहीं आना था तू चली आई दुहाई हुई क्या बात हो गई तू चली आई दुहाई हुई क्या बात हो गई मैंने छोड़ा ज़माना तेरे हाथ हो मैंने छोड़ा ज़माना तेरे साथ हो गई ओ तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई अम्मा की डाली पे गाय मत वाली कोयलिया काली निराली अम्मा की डाली पे गाय मत वाली कोयलिया काली निराली सावन काली का कुछ मतलब होगा बादल छाने का कोई सबब होगा रिम झिम छाई कटाई है क्या बात हो गई रिम झिम छाई कटाई है क्या बात हो गई तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई दिल्ली दिल को पुकारा मुलाकात हो गई छोड़ न भैया पड़ो तेरे मैया तारों के छैया में सैया छोड़ न भैया पड़ो तेरे मैया तारों के छैया में सैया एक वो दिन था मिलाती ना कि तू अखियां एक ये दिन है तू जाके सारी सारी रतियां बन गई गोरी चकोरी और क्या बात हो गई बन गई गोरी चकोरी और क्या बात हो गई जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई दिल को पुकारा मुलाकात हो गई दिल में दिल को पुकारा मुलाकात हो गई थैंक यू और खूबसूरत से जो वेन्यू में हम बैठे हैं वहाँ के जो ऑनर हैं वेरी वेरी सीनियर वेरी वर्सेटाइल और एसपी जी की आवाज़ में और यशुदास की आवाज़ में बखूबी गाते हैं तो उन्हीं से गाया हुआ कोई नगमा योगेन भाई पारेख को मैं ऑनर यहाँ बुलाना चाहूँगा और आते हैं कुछ गुनगुनाते हैं थैंक यू सो मच एसपी हो जाए एसपी ऐसी एसपी हो ओनली एसपी योगित भाई ओनली एसपी एसपी बखुदी का बड़ा सहारा है, बखुदी का बड़ा सहारा है।
थैंक यू। बढ़िया बढ़िया क्या बात वैसे ऐसा कहा जाता है कि जो हलवाई का दुकान वाला होता है वो हलवाई नहीं खाता है। ये म्यूजिक के स्टूडियो वाले हैं और खुद गाना भी इतना अच्छा गाते हैं। जोरदार तालियां योगेश भाई के लिए। थैंक यू। तो अभी आज के इस शो के आखिरी दौर में मैं नीरज जी से गुजारिश करूंगा कि जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करें। उसके पहले फिर से आज के ये 51वां शो का सेलिब्रेशन में जिन्होंने आज तक हमारा साथ दिया वो सभी कलाकार मित्रों, वेल विशर, फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स, जो कोई भी है, टेक्नीशियंस, वो सबका हम दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे के लिए फॉर्मेलिटी में नीरज भाई को देता हूँ। थैंक यू दोस्तों। और यहाँ तक जो लंबा सफ़र हमने तय किया है और यहाँ तक हम पहुँचे, ये हम अकेले की जीत नहीं, हम सभी की जीत है। इसमें व्यूअर्स है, जैसे प्रजा जी ने बोला, दोस्त है, सिंगर्स हैं, स्टूडियो के ऑनर भी हैं, सभी दोस्तों ने हम सभी को बहुत खूबसूरत तरीके से साथ दिया है। हमेशा ऐसा साथ देते रहिए। और इस पूरी टीम को, अभी आधुरी टीम है हमारी, तो मैं मीनू शर्मा जी को एक बार बुलाना चाहूँगा और नीरव हिंगू जी को बुलाना चाहूँगा। उसके बाद इस शाम का हमें अंत करेंगे, हम रुखसत करेंगे आप सभी से। और ये हम मिलेनियम इवेंट्स, पुट मी इन टच प्रजा, प्रकाश जड़ावाला जी, इनके बिहाफ में, इनके सपोर्ट से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि संगीत की दुनिया में मेरा जन्म हुआ है। जन्म तो मेरा 2.5 साल पहले हुआ था, लेकिन बोलते ना कि बच्चे का नामकरण, तो नामकरण करने वाले जो है वो पुट मी इन टच प्रजा प्रकाश जड़ावाला जी और मेरे वेरी सीनियर और बड़े भाई जैसे नीरव हिंगू जी है, इनका भी बहुत साथ रहा है। और ये तो है ही, लेकिन जिनके बगैर मैं इस संगीत में ना आ सकता था और ना आ चुका होता, तो वो नाम है मीनू शर्मा। तो मैं उनको माइक दूंगा और वो अच्छा वो बोल नहीं पाएंगी। प्रकाश जी आप ही अंत कीजिए, आप ही रुखसत कीजिए सबको। आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। तो आज हमारे साथ और हमारे आज के सिंगर है नीलम गढ़वी जी, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो डायस पे है। और हमारे फ्रेंड पावन सोलंकी जी जो है, जिनके बदौलत आज हमें एक अचीवमेंट का एक सर्टिफिकेशन मिला, उनको मैं गुजारिश करूंगा वो स्टेज के ऊपर आए। और आप सबके साथ फिर से जो मैं पूरे शो में बताया है, आज तक हर एक शो में हम बताते आ रहे हैं कि हर एक सिंगर दोस्तों, टेक्नीशियन, अपने स्टूडियो के ओनर्स, अपने वेल विशर फ्रेंड्स, उन्हों की वजह से सिर्फ और अपने बुजुर्ग जो है उनकी आशीर्वाद से ये सब पॉसिबल हुआ है। करीब ये 51 शो की इतनी लंबी जर्नी के दरमियान हमें गुजरात के सभी लीडिंग जो सिंगर्स हैं उन सब का भी हमें साथ मिला है। मैं उन सब का भी नाम का यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा, जैसे वर्षा कुलकर्णी जी है, ज्योति क्रिश्चियन जी है, निकिता शाह जी है, शिवांग दवे है, सेन शेख जी है और सब है दोस्त जिनका हम अलग से कल हमारी एपी पोस्ट में हम रखने वाले हैं। लेकिन आप सबका हम फिर से यहाँ से शुक्रिया अदा करते हैं, आपको सलाम करते हैं, आपको वंदन करते हैं। आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ये प्रार्थना करते हुए हम सब आपको गुड बाय कहना चाहते हैं। गुड बाय, शब्बा खैर।